Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration, MPA 403. Lecture is 29 and I am your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram. So as you know that first of all we will have some reflection of our previous lecture and then we will move on to our today's lecture. So in our previous lecture we have talked about the role of personality and diversity with respect to development planning and administration. Now जब हम बात करते हैं planners की, administrators की, they should have a wonderful personality and they should be able to manage a highly diversified workforce. So पहले हम बात कर लेते हैं personality की. Now personality की जब हम बात करते हैं, so the most important thing that builds and strengthens any personality in the world is attitude. So in our previous lecture we have talked in depth about the impact of attitude on developing and strengthening any personality with particular reference to planners and administrators. Now attitude means the way you think, the way you perceive yourself. So your thinking, your perception about yourself and your perception about others. So your personality, the root cause of your pleasant personality or wonderful personality is in that attitude. So the more optimistic you are, the more pleasant personality you will have, and the more pessimistic you are, the more negative personality you will have. So attitude has a direct impact on your personality. Now, in our previous lecture, we have also talked about diversity, like how diversity plays an important role in creativity and innovation in an organization. And with the passage of time, you know, we are having highly diversified workforce in our organizations. Like for example, people from different cultures, different religions, different backgrounds, different geographical locations, male and female working in the same organization. Now it becomes really, you know, challenging for the administrator to manage a highly diversified workforce. On one side it is really challenging, but on the other side the benefits from a highly diversified workforce are really wonderful. Now organizations having a highly diversified workforce, they are more creative, they are more innovative than those organizations who have a homogeneous group or who do not enjoy a highly diversified workforce. So in our previous lecture, we have talked about the importance of personality, we have talked about the importance of workforce diversity and the impact it has on development planning and administration of an organization. Now we move on to our today's topic of discussion, and that is role of critical thinking in development planning and administration. Now let's see what it is. So before moving on to towards our topic, I need you to look at this picture very closely. Step up the stairs or stare at the steps, according to Rolf Nichols. Okay, which is better? Now some of the planners, they do that, they stare at the steps. And there are certain planners who step up the stairs. Now अगर आप हर वक्त स्टेयर ही करते रहेंगे, आप स्टेप्स को देखते ही रहेंगे और आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो हाउ यू विल अचीव योर टारगेट्स,
how you will achieve your targets within your time frame. So what we learn from this picture is that we need to, of course, stare at the steps, but like there should be a limit. You know, yes, we should stare, but then moving ahead, moving forward is also very important. Now your thinking can either trap you or free you. How? Let's see how. Your thinking can trap you, like it hold you hostage within uncritically held beliefs. Now what do we mean by this? That how your thinking traps you. Like for example, if you like stick to your point of view and you do not want to change your point of view, whatever the other person tells you, whatever the logics other tell you, even if the situation or the logic is different, but since you have one point of view and you stick with it. So when you are not flexible, when you are not giving the importance to other person's point of view, when you are not looking at the same object from different perspectives. जैसे कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैंने जैसे कहा है ऐसे ही होगा, और किसी किस्म की कोई डिस्कशन, कोई आर्गुमेंट मैं सुनना नहीं चाह रहा. अगर इस तरह की जो लोग बात करते हैं, their minds are trapped and they, वो एक ऐसे कुएं के मेंढक की तरह हैं जो ये समझता है कि सारी दुनिया यही है, लेकिन अगर कुएं से बाहर जब वो आता है तो उसको पता चलता है कि दुनिया जो है उसमें बहुत चेंजेस आ चुकी हैं. और जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, जो लोग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, जो मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को नहीं देखते, तो their minds are trapped. Your thinking can free you. It opens your mind to new ways of thinking. So how your thinking can free you? When you are flexible, when you give importance to other person's point of views as well, when you respect others, when you say, I agree to disagree. So why not? So I strongly believe that we need to promote this culture in Pakistan, that we should become more flexible. We should respect others more. We should give more value to our colleagues, juniors and seniors. So we should look at the same object from different perspectives, different angles. We need to think that what others are thinking. We need to give value to others' point of view as well. So, जैसे हम कहते हैं कि 1 + 1 = 11, तो वो 11 कब आएगा? जब आप दूसरे के साथ मिल के सोचेंगे, as a teamwork. We don't achieve excellence in thinking with no end in view. Of course, जैसे हम बात करते हैं कि एक्सीलेंस उस वक्त तक हमारी काम में नहीं आ सकती जब तक हम जो काम हम कर रहे हैं उसको एंड को सामने हम ना रखें. इन अदर वर्ड्स, कि जो लोग फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं, उस प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को सामने रख के जब वो अपने काम की बिगनिंग करते हैं, तो दे हैव ए वंडरफुल बिगनिंग. उनका जो क्लोजिंग है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, वो भी बहुत वंडरफुल होती है. एज ए मुस्लिम यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि रोज़े क़यामत का और अपनी कब्र का सोचकर जब अब अपने आमाल को हम देखते हैं, हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं डेली, तो जो लोग रोज़े क़यामत का और अपनी कब्र का सोचकर कि हमने कब्र में जाना है, हमने क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो डेफिनेटली
आपका प्रेजेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सेम इज द थिंग कि आप अपने एंड को सामने रखकर जब अपने काम का आगाज करेंगे तो आपका आगाज, आपकी बिगनिंग एक्सेलेंट हो जाएगी। सो हु शुड थिंक क्रिटिकली? ओनली यू? ओनली मी? ओनली स्टूडेंट्स? ओनली टीचर्स? सो हु शुड थिंक क्रिटिकली? Everybody. Now it is the responsibility of every human being on earth to think critically. So people who are good critical thinkers, they are the best people. जो लोग गौर नहीं करते, जो लोग सोच विचार नहीं करते, जैसे हम कहते हैं कि पहले तोलो फिर सोचो फिर बोलो, this is what critical thinking is. So let's look at some of the examples. If I think that I don't need a college degree to get a good job, I will feel satisfied with a high school education. Therefore, I will not pursue higher education. Now what does it mean? अगर जैसे कुछ लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि जी डिग्री का क्या फायदा अगर नौकरी ना मिले। दे आर हाईली मिस्टेकन। एजुकेशन का, डिग्री का, क्वालिफिकेशन का ऑफ कोर्स एक पर्पज ये भी है कि आप जॉब करें, आप अपना बिजनेस करें, अपना काम करें, लेकिन क्या सिर्फ यही मकसद है डिग्री का, क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का, या इससे बढ़कर भी कुछ और? So of course there are so many benefits, advantages of getting education, and the most important benefit of education is you become a better person. You improve your attitude and behavior becomes more positive. You become a better brother, you become a better sister, you become a better father, you become a better mother, you become a better son, you become a better daughter. So we improve our relationships in our homes. We become a better human being. आप अच्छे इंसान बनते हैं। इस्लाम में जैसे कहा जाता है कि इल्म हासिल करो महद से लेकर लहद तक, इस दुनिया में आने से लेकर जाने तक आप इल्म हासिल करें। तो दैट शोज द रियल significance of getting education. So education means learning, and learning is an ongoing process. और एजुकेशन को, लर्निंग को सिर्फ जॉब की हद तक सोचना, नौकरी की हद तक सोचना, बिजनेस की हद तक सोचना, आई थिंक बहुत ज्यादती है। तो हमें इस पे गौर करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको रियलाइज करना है कि लर्निंग इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, इफ आई फील humiliated in the classroom because I think I have been treated unfairly by the teacher, I will avoid actively participating in group discussions. नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया कि क्लासरूम के अंदर जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टीचर ने आपको अनफेयरली आपको डांट दिया, तो नॉर्मली जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो ऑब्जर्व किया गया, फीडबैक लिया गया, उससे ये मालूम हुआ कि ज़्यादातर इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स दे अवॉइड पार्टिसिपेटिंग। वो पार्टिसिपेशन बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। It means that they are not good critical thinkers.
सो एज ए गुड क्रिटिकल थिंकर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? स्टूडेंट को ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और स्टूडेंट जब ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहले उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा, उसकी अपनी लर्निंग होगी। उसके साथ साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है टीचर स्टूडेंट के दरमियान, या जो बाकी आपके फेलोज हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, तो उनको क्लियर होगा कि आप यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो बजाय ये कि आप चुप करके बैठ जाएं और अपनी पार्टिसिपेशन को बहुत कम कर दें, यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। बल्कि यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेशन को पहले से भी ज्यादा कर दें। Now taking another example of critical thinking, if I think that learning should be easy, I will feel frustrated when it is difficult. Therefore, I will avoid difficult learning situations. तो अगर आप ये समझते हैं कि लर्निंग इज अ पीस ऑफ केक, कि जी ये प्लेट में है, ये उठाया और ये खाया और लर्निंग हो गई, लेकिन जब आप लर्निंग में आपको जब मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको फोकस करना पड़ता है, आपको एनर्जी की जरूरत है लर्निंग के लिए, तो फिर अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड क्रिटिकल थिंकर। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि लर्निंग को एज ए चैलेंज आप लें, और वट एवर द सिचुएशन इज, you should never quit learning. If I value what I'm learning, I think it is relevant to my life. Therefore, I will feel excited about learning. Now, talking about this picture. Have you seen this? Okay, this diagram, what does it reflect? एम्प्लॉयर जो है वो उंगली से इशारा कर रहा है अपने एम्प्लॉय को कि 98% तुम्हारी परफॉर्मेंस रही है। अगर आप उसकी एम्प्लॉय की पहले की परफॉर्मेंस देखें तो वो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको नजर आ रही है 100%। एक जगह पे जाके 98% जो है वो है। इट मीन्स डैट के जो क्रिटिकल थिंकर्स लोग नहीं होते वो किसी एक बात का पतंगड़ बना लेते हैं। और यहां पे ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि हमने कभी मिस्टेक नहीं की, तो आई डाउट कि उन्होंने शायद कभी कोई काम भी ना किया हो। तो जो लोग काम करते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं और गिरते हैं शायद सवारी मैदानी जंग में। ट्राई अगेन। एक फिलोसोफर ने कहा कि मिस्टेक्स आर नॉट मिस्टेक्स, एक्चुअली इट इज लर्निंग। सो लर्निंग until learned. So you need not to worry about your mistakes. Now talking about the employee performance or performance evaluation reports, boss is saying to his secretary, I have been using the same graph for last 5 years irrespective of how they perform. Now that shows that कि आपने एक परसेप्शन बना लिया अपने एम्प्लॉइज के बारे में, आपने एक माइंडसेट बना लिया है और अब आपका माइंड ट्रैप हो चुका है और आप उससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई डिसएग्री। फर्स्ट इंप्रेशन
of course is very important, but it should not be the last impression. Yes, first impression remains for a certain period of time. लेकिन जो critical thinkers हैं, they keep on analyzing कि employee performance with the passage of time उसमें क्या variations आ रही हैं, क्या plus minuses आ रहे हैं, employee की performance पहले से बेहतर हो रही है या पहले से कम हो रही है या सेम परफॉर्मेंस है. बजाय ये कि आप एक दफा किसी की परफॉर्मेंस आप उसको एवेलुएट करें और जो एक दफा रिजल्ट आए तो हर दफा जब आप उसकी अप्रेजल कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन कर रहे हैं, तो आप पीछे वाले रिजल्ट्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि जी चूंकि इसने पहले साल ऐसा परफॉर्म किया था तो मैं समझता हूं कि हर साल अब ये ऐसे ही परफॉर्म करता है, विदाउट checking the ground reality, without getting the existing performance data. So people who do this type of thing, they are not critical thinkers. Now the employer is saying to his employees, jump. Now अगर आप अंदाजा करें तो is it realistic? In most cases, no. तो अगर यहां पे मैं हूं तो सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉयर को कहूंगा कि प्लीज सर यू जंप, यू टेल अस हाउ. सो ट्राई टू गिव realistic targets to your employees. So people who give unrealistic targets to their subordinates, they are not good critical thinkers. Employees working और बॉस आता है और बॉस इज डूइंग, ये आप देखें कि आउट फाइल्स हैं और इन फाइल्स हैं पिक्चर में. एम्प्लॉय ने जो काम कर लिया है वो आउट वाली ट्रे में पड़ा हुआ है, तो बॉस जो है वो उसको एक मेजरिंग टेप लेके आया हुआ है, जस्ट मेजरिंग योर जॉब परफॉर्मेंस. इट मीन्स दैट कि क्वांटिटी को फोकस किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ क्वालिटी. सो पीपल हु फोकस मोर ऑन क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ क्वालिटी, they are not critical thinkers. So these are the definitions of critical thinking. In everyday language, thinking outside the box. Now what is that box? That box is कि आप अपनी सोच से बाहर नहीं आते. आप जो एक दफा सोच लेते हैं फिर उसके ऊपर आप स्टैंड ले लेते हैं और फिर कुछ भी हो जाए, लोग जितनी भी आपको लॉजिक दे लें, जितनी भी आपको रीजन दे लें, जितने भी आर्गुमेंट्स कर लें, जितने भी आप फैक्ट्स देख लें, आप कहते नहीं जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया वैसे ही होगा. सो जब आप उस बॉक्स से बाहर आती है आपकी थिंकिंग, जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, दैट इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स. थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अनलिमिटेड थिंकिंग, डिफरेंट थिंकिंग. सो आम लैंग्वेज में, आम फहम जबान में जब हम क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन करते हैं, सो दीज आर सम ऑफ द मीनिंग्स. नाउ थिंकिंग क्रिटिकली मीन्स एग्जामिनिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन मे हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, द अदर पर्सन मे हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं. और ये हाउ टू डू दिस थिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन ऑफिस मीटिंग्स, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की, सो इट इज देयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को एग्जामिन करें, कि जो प्लान्स आपने पहले डेवलप किए और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो प्लान्स को इंप्लीमेंट किया, तो उसके ऊपर क्या फीडबैक है, हर एक अपना क्या व्यू पॉइंट है, उसको एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना और उसके अंदर से फाइंडिंग्स जो हैं
वहां से कंक्लूजन जो है ड्रॉ करना। लर्न टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एक ही चीज के बारे में, एक ही प्रोजेक्ट के बारे में, एक ही सिचुएशन के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से थिंकिंग करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन क्लासरूम में आता है, स्टूडेंट, तो क्लास में आते ही वो किस चीज को फोकस कर रहा है? वो अपनी टेबल को देख रहा है, अपनी चेयर्स को देख रहा है, व्हाइट बोर्ड को देख रहा है, मल्टीमीडिया को देख रहा है, क्लासरूम की दीवारों को देख रहा है, वहां पे अगर कर्टन्स लगे हुए हैं उनको देख रहा है, फैंस को देख रहा है। सो उसका फोकस कहां पे है? सो people have different thinking styles, so they should look at the same thing from different perspectives, different angles. तो जब आप एक ही चीज को different angle से देखते हैं, so you of course learn and आपकी awareness ज्यादा बेहतर हो जाती है उस चीज के बारे में। View those opinions which differ from yours, very important। ज्यादातर जो लोग हमें मिलते हैं लाइफ में, अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया कि वो आपकी तारीफ बहुत कर रहे होते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपको कई दफा पता भी होता है कि काम आपने ठीक नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और उन लोगों को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस देना शुरू करें कि जिनका एक टोटली डिफरेंट व्यू पॉइंट है आपसे, बट विद लॉजिक, जो आर्गुमेंट्स के साथ, लॉजिक के साथ आपको एक इंटायरली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं जो कि आपका नहीं है। और यहां पे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई रियली अप्रिशिएट दीज टाइप ऑफ पीपल हु हैव ए टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विद लॉजिक। So this is the best opportunity I have of learning. This is like an eye opener. तो मैं समझता हूं कि बजाय ऐसे लोगों पे नाराज होने के, उन पे गुस्सा करने के, उनको अवॉइड करने के, उनको इग्नोर करने के, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि ऐसे लोगों के साथ बैठने की जरूरत है, ऐसे लोगों से लर्न करने की जरूरत है और ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। एंड इट ऑल्सो मीन्स अवॉइड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस। ना कुछ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं लोगों के कि हर काम करने का उन्होंने एक टिपिकल ट्रेडिशनल तरीका है उनका। लाइक ऑफिस में एक फाइल आई, अब आपने फाइल उठा के रख दी, ओके, अब कहते हैं कि जी ओके, चूंकि आप करते हुए आ रहे हैं रूटीन में एक काम, तो ठीक है अभी तो फाइल आई है, इसको कुछ देर के बाद खोलेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर कुछ करेंगे। तो व्हाई नॉट कि आप इन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस को चेंज करें। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे तो फाइल जो ही आई है आपके पास, आप उसको इमीडिएटली ओपन करें और आप उसके ऊपर वर्किंग शुरू करें। तो जो लोग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस देते हैं, दे आर नॉट क्रिटिकल थिंकर्स, एंड पीपल हु अवॉइड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस, दे आर रियली गुड क्रिटिकल थिंकर्स। Now these are some of the benefits of critical thinking. Critical thinking helps to recognize propaganda. Like एक rumors लोग create करते हैं, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की शोहरत को, उसकी रिप्यूट को, गुडविल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, और ये बातें विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी आर्गुमेंट्स होती हैं। तो आपको एज ए गुड क्रिटिकल थिंकर आप आसानी से प्रोपेगेंडा में और एक ऑथेंटिक जो न्यूज है उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
और आपको पता चल जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है और ये एक वाकई एक क्रेडिबल न्यूज है। Critical thinking also helps to analyze hidden assumptions in arguments. Like for example, office meetings में लोग arguments दे रहे, तो critical thinkers को पता लग जाता है कि जो आपका फेलो है या मीटिंग पार्टिसिपेंट है, वो जो आर्गुमेंट्स दे रहा है तो उसके पीछे असल में वो क्या चाह रहा है, उसकी हिडन अजम्पशन क्या है, वो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं एज ए गुड क्रिटिकल थिंकर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग आर्गुमेंट्स तो दे रहे होते हैं इस तरफ का, लेकिन एंड पे जाके वो अचानक एक यू टर्न लेके और एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, या अपने किसी सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से कुछ लोग किसी चीज को ज्यादा एम्फेसाइज करके आर्गुमेंट्स दे के अपना उसमें जाती फायदा लेने के चक्कर में होते हैं। So as a good critical thinker, you can analyze कि जी एक्चुअली पर्सन क्या चाह रहा है और जो वो आर्गुमेंट्स दे रहा है तो एंड पे वो किस तरफ को जाएगा। So planners and administrators, they know this thing, and of course accordingly वो अपने plans को और अपनी strategies को as a proactive manager उसको पहले से improve करते हैं। To recognize deliberate deceptions, लोग चीटिंग करते हैं, like fraud करते हैं, आप उनको recognize कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, prevention is better than cure। आपको पहले से अंदाजा होता है, आप recognize कर जाते हैं कि कौन सा पर्सन क्या कर सकता है as a good critical thinker। To assess credibility of information, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है इन योर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक्टिविटी के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एज ए गुड क्रिटिकल थिंकर उसकी क्रेडिबिलिटी को वो असेस कर सकते हैं। टू वर्क थ्रू प्रॉब्लम्स डिसीजंस इन द बेस्ट वे, और प्रॉब्लम्स और डिसीजंस को बहुत बेहतर तरीके से ये प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं और डिसीजंस लेते हैं बहुत बेहतर तरीके से if they are good critical thinkers, and all of these findings are given by Harper 1996. Now let us talk about the different qualities of thinking. So all thinking is not of the same quality. So when we talk about thinking, there are two qualities: aimless thinking and high quality thinking. Now this slide is really very interesting. So talking about aimless thinking, we are naturally proficient at daydreaming and fantasizing. हम कुदरती तौर पे प्रोफिशिएंट हैं डे ड्रीमिंग के और फैंटेसाइज करने के। इट लैक्स ए पर्पस। एमलेस थिंकिंग में कोई खास पर्पस नहीं होता। फ्यू पीपल नीड ट्रेनिंग इन एमलेस थिंकिंग, और एमलेस थिंकिंग करने के लिए कोई खास ट्रेनिंग की भी आपको जरूरत नहीं होती। थिंकिंग दैट इज रैंडम, दैट रोम्स एमलेसली इज नॉट क्रिटिकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल यहां देना चाहूंगा कि जाहिर बात है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हर वक्त हम कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में होता है और हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। ना एमलेस थिंकिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में आप फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलते थे। अब जो ही आपने सोचना शुरू किया कि आप क्रिकेट खेलते थे, तो अभी आपने सिर्फ इतना ही सोचा है कि आप क्रिकेट खेलते थे, तो आपका दिमाग जंप करके चला जाता है, तो आपको एक बर्गर वाला याद आ जाता है कि जी आपके घर के करीब एक मार्केट थी और वहां पे एक बर्गर वाला था और वहां से आप बर्गर लेके खाते थे बड़ा, और अभी आपको बर्गर याद आया तो वहीं से जंप किया और आपको अपना एक पेपर याद आ गया।
कि जी एक पेपर में, एक एग्जाम में आपने आप बड़ा टफ एग्जाम था, अब जो ही एग्जाम आपको याद आया तो जंप करके आपको कुछ और याद आ गया। अभी आपको तो यू आर जंपिंग फ्रॉम वन थिंकिंग टू अनदर थिंकिंग, और किसी भी थिंकिंग को आप कंक्लूड नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग दैट इज रैंडम, दैट रोम्स एमलेसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आप क्रिकेट खेलते थे पहले, या अभी भी क्रिकेट खेलते हैं अगर आप, तो पूरा सोचें आप कि क्रिकेट में आप एज ए बॉलर थे, एज ए बैट्समैन ज्यादा बेहतर थे, एज ए फील्डर आपकी स्किल ज्यादा स्ट्रांग थी। तो ट्राई टू एनालाइज योर स्किल्स। तो जब आप एक पर्पस से सोचते हैं और जो भी आप सोचते हैं उसको आप कंक्लूड करते हैं, उससे लर्न करने की कोशिश करते हैं कि आइंदा अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप किन चीजों का ख्याल रखेंगे, जो पहले आपकी वीकनेसेस थी उसको आप ओवरकम कैसे करेंगे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, सो इट मीन्स कि आप एक चीज को एनालाइज करके, कंक्लूड करके उससे लर्न कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हाई क्वालिटी थिंकिंग। लेकिन अगर आप किसी चीज को भी एनालाइज किए बगैर और उसको कंक्लूड किए बगैर आप जंप करते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और किसी जगह पे भी आप पास दिए बगैर, रुके बगैर, उसको एनालाइज किए बगैर आगे जंप कर रहे हैं, उस थिंकिंग से कुछ लर्न करने की बजाय आप सिर्फ उसको यू आर मूविंग एमलेसली, तो दैट इज एमलेस थिंकिंग। तो हाई क्वालिटी थिंकिंग में इट हैज ए पर्पस, you are analyzing and you want to learn from it. We originate and produce with a sense of why we are doing so. When thinking takes on a challenging task, the mind comes alive, ready for intellectual labor for the achievement of its goal. So this is really very important, that we need to focus on high quality thinking. You know, life is too short. जिंदगी बहुत शॉर्ट है, और इस वक्त अगर आप देखें तो टाइम कितनी तेजी से गुजर रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि अब हफ्ते, महीने कितना जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं? तो वॉच या क्लॉक्स तेज नहीं हुए, एक्चुअली हमारी एक्टिविटीज बहुत हो गई हैं। पहले अगर आप दिन में 4 काम करते थे तो अभी शायद आप 20-30 काम कर रहे हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी आने से हमारी मसरूफियत भी ज्यादा बढ़ गई है। इन्फ्लेशन की वजह से एक पर्सन को कई काम करने पड़ रहे हैं। सो वक्त के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, आपका रोल ज्यादा इस वक्त सीरियस होता जा रहा है, इंपॉर्टेंट होता जा रहा है अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने ऑफिस में। तो व्हाई नॉट कि हम अपने टाइम का, अपनी लाइफ का एक पर्पस आप उसको डिफाइन करें, और जो भी आप सोचें उसको एक पर्पस के साथ सोचें, क्योंकि टाइम को वेस्ट करना किसी सूरत भी ठीक नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, वक्त पर लगा के उड़ जाता है। व्हाट इज द गुड न्यूज? द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। तो आप टाइम से फायदा उठाएं, आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करें, बजाय ये कि हम अपने टाइम को एमलेस थिंकिंग में बर्बाद करें। सो गुड क्रिटिकल थिंकर्स, दे ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज देयर टाइम, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टाइम। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप टाइम मैनेजमेंट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपने स्केड्यूल्स बनाएं, अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करें, अपना एक डेली आप एक बनाएं एक्टिविटी लिस्ट। आप में से कितने लोग हैं जो
लाइक अपनी एक एक्टिविटी लिस्ट बनाते हैं कि आज मैंने क्या करना है। और जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो तो अगले दिन का भी आज लिख लेते हैं कि नेक्स्ट डे मैंने क्या करना है। सो जब आप एक अपनी एक्टिविटी लिस्ट बनाएंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आप बहुत इजी फील करेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि आज आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, किस एक्टिविटी के लिए आपके पास कितना टाइम है, और एक प्रायोरिटी सेटिंग करें। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा काम मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कौन सा काम जो है वो इंपॉर्टेंट तो है बट मोस्ट अर्जेंट नहीं है, और कौन सा ऐसे काम है हमारे जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, लेकिन आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स हम बनाते हैं। तो इस तरह की आप एक मैट्रिक्स बनाएं कि कौन से काम आपके इंपॉर्टेंट हैं, अर्जेंट हैं, कौन से काम आपके इंपॉर्टेंट नहीं है या अर्जेंट नहीं है, या कौन से काम इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट हैं जिनको आप बाद में भी कर सकते हैं। सो वी नीड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर टाइम। उसके लिए ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी थिंकिंग इज अ वंडरफुल way of doing it. So all of these findings are given by Dr. Richard Paul and Dr. Linda Alder. They are from the Foundation for Critical Thinking Press 2010. Should you believe everything you see? Okay. हर चमकती चीज क्या सोना ही होती है? जो चीज भी आप देखते हैं क्या उस पर आप फौरी यकीन कर लेते हैं? You know, critical thinkers, they always say no. Now, talking about perception, we often see and hear what we want to see and hear, based upon our past experiences, interests, motives, expectations, to stay within our comfort zone. Now let us again look at this definition. Okay, so perception is the way you think. So किसी चीज को भी देखते हुए हम अक्सर ये कहते हैं कि जी लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को देख के जब आप कमेंट्स दे रहे होते हैं, सो दोज कमेंट्स आर आल्सो शोइंग योर परसेप्शन. सो वी सी एंड हियर व्हाट वी वांट टू सी एंड हियर. जो हम सुनना और देखना चाहते हैं एक्चुअली हम वही सुनते हैं और वही हम देखते हैं, और उसके अलावा शायद हम कुछ और सुनना और देखना ही नहीं चाहते. बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और ये जो स्टेटमेंट है कि जो आप सुनना और देखना चाहते हैं आपको वही नजर आता है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आपने अपने पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है. फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के एक्सपीरियंस में कोई बैड एग्जाम्पल्स होती हैं, उनकी जिंदगी में जैसे कोई अल्लाह ना करे कुछ कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के साथ किसी ने फ्रॉड किया है, उसका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो उस पर्सन के लिए फिर ये मुश्किल हो जाता है कि वो दोबारा किसी पे ट्रस्ट करे. तो वो एक इस तरह की एक अनसर्टेनिटी टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. और ऐसे लोग जिनके एक्सपीरियंस में कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं होता और उनका एक पॉजिटिव एक पास्ट में एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ काम करने का, ट्रस्ट के मामले में भी, तो दे इजीली ट्रस्ट अदर पीपल. It also depends on your interests. Now, interest means the willingness thing. Interest and motives को हम इकट्ठे लेंगे
कि जो आपके मोटिव्स हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, दैट इज योर विलिंगनेस पार्ट, योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग, कि आपकी कितनी विलिंगनेस है, आप खुद कितना चाह रहे हैं कोई काम करना। तो जब कोई काम आप खुद करना चाह रहे हैं, आपकी एक सेल्फ मोटिवेशन भी है, उसमें आपका एक सेल्फ इंटरेस्ट भी है, तो आपकी परसेप्शन बड़ी खुशगवार होती है, आपकी परसेप्शन बड़ी पॉजिटिव होती है, आपके चेहरे पे बहुत स्माइल्स होती हैं वो काम करते हुए। लेकिन अगर ऑन दी अदर साइड, अगर आपका उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट और आपकी इनर मोटिवेशन नहीं है उस काम में, तो डेफिनेटली आपकी एक डिससेटिस्फेक्शन नजर आ रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी टोन से, आपके बिहेवियर से। Perception also depends on our expectations. Like, जब आपकी दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो आपकी डिफरेंट परसेप्शन होती है, और जब आपकी किसी के साथ बहुत कम या ना होने के बराबर परसेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आपकी परसेप्शन उतनी ही उसके बारे में एक डिफरेंट तरह की होती है। और ये आप क्यों करते हैं? टू स्टे विद इन आवर कंफर्ट जोन। तो लोग अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना पसंद करते हैं। नाउ द क्रिटिकल थिंकर्स, they do not want to stay within their comfort zones. So what is that comfort zone? कि जिन चीजों को आप लाइक करते हैं, जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट होता है, जो चीजें फेमिलियर होती हैं, जो जिस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिस तरह के आपके मोटिव्स होते हैं, उन्हीं चीजों को आप अप्रिशिएट करते हैं, और परसेप्शन भी आपकी उन्हीं एंगल्स के ऊपर डेवलप हो रही होती है। सो जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, सो दे टॉक अबाउट कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सो दे एम्फेसाइज ऑन मूविंग फ्रॉम द कंफर्ट जोन टू द जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी। What does the absence of critical thinking look like? Now this is really very important कि आपको कैसे पता चलेगा कि लोग क्रिटिकल थिंकर हैं या नहीं है, या आपको अपने बारे में कैसे पता चलेगा कि आर यू अ क्रिटिकल थिंकर और नॉट। ओके, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। When we blindly accept all statements, हमें कोई पर्सन भी कुछ भी आके कह देता है, या कुछ भी आप पढ़ लेते हैं, कुछ भी आप देख लेते हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट आपको आके दे रहा है, यू एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली। आप उसको वेरीफाई नहीं कर रहे, आप उसको क्रॉस चेक नहीं कर रहे। सो ये तो वही हुआ कि अगर कोई र्यूमर्स आपको बता रहा है, कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको एक इनकरेक्ट न्यूज दे रहा है, तो आप एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्लाइंडली, और आप अपने सेंसेस को यूज ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन आपको कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप जो काम कर रहे हैं, इस काम के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है, तो अगर आप ब्लाइंडली उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है आप काम करना उसी वक्त बंद कर दें। सो व्हाई नॉट यू क्रॉस चेक इट, व्हाई नॉट यू वेरीफाई इट, व्हाई नॉट यू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो व्हाई नॉट यू यूज इंटरनेट, यू गेट हेल्प फ्रॉम इंटरनेट। उस इंफॉर्मेशन की, उस स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करना, चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग आंखें बंद करके दूसरों की बातों पे यकीन करते हैं, दे आर नॉट क्रिटिकल थिंकर्स। और जो ब्लाइंडली आप जब एक्सेप्ट करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आप हर स्टेटमेंट के ऊपर ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन लॉस की तरफ जाती है,
और अल्टीमेटली आपका अपना भी लॉस होता है, क्योंकि जब आप ब्लाइंडली स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी अपनी रिप्यूट भी डैमेज होती है। वी ब्लाइंडली बिलीव टीवी कमर्शियल्स। इस वक्त जितने टीवी चैनल्स हैं, लाइक 100 के करीब टीवी चैनल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और हर चैनल के ऊपर मैं समझता हूं कि जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं या जो इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उससे कहीं ज्यादा जो ड्यूरेशन के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, कमर्शियल्स दिखाए जा रहे हैं। तो जो लोग टीवी के ऊपर जो कमर्शियल्स आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, उनको ब्लाइंडली उनके ऊपर बिलीव करते हैं, एज इट इज उसको सच मान लेते हैं। दे आर नॉट क्रिटिकल थिंकर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, विदाउट नेमिंग द कंपनीज, मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कभी टेलीविजन के ऊपर इश्तिहार देखा हो कि आप हमारी मेडिसिन यूज करें तो 10 दिन में शुगर, डायबिटीज जो है उसका जड़ से खात्मा, और एक दावा किया गया होता है, और आप ये मेडिसिन लें तो 1000 रुपीज की है, और आप अगर अभी कॉल करेंगे तो ये आपको बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इट मीन्स के 500 रुपीज में आपको मेडिसिन मिल रही है, जिसमें 1 वीक में डायबिटीज का, शुगर का टोटल खात्मा, ये क्लेम किया जा रहा है ना। उसी एडवर्टाइजमेंट में आप गौर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक लाइन लिखी होती है नीचे कहीं, छोटी सी, समटाइम लिखी होती है, कभी नहीं भी लिखी होती, कि दिस मेडिसिन इज नॉट फॉर सेल आउटसाइड पाकिस्तान। तो जनाबे आली, अगर इतनी बड़ी इजाद हो चुकी है, इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और इसके इतने वंडरफुल बेनिफिट्स हैं, तो ऐसे पर्सन को तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। बजाय ये कि आप उसको कह रहे हैं कि दिस मेडिसिन इज नॉट फॉर सेल आउटसाइड पाकिस्तान। इसके बावजूद ये देखा गया कि कुछ लोग उनके मेडिसिन्स के लिए, उस मेडिसिन्स के लिए वो ऑर्डर करते हैं और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो बजाय शुगर ठीक होने के, उनके लिए मजीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो क्या उन तमाम दावों में, क्या वो जो बड़े बड़े उनके एडवर्टाइजमेंट में जो स्लोगन्स होते हैं उनके, क्या वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो तमाम चीजें डिलीवर कर रही हैं, नहीं कर रही? आपको उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को चेक करने की जरूरत है। तो जब आप ब्लाइंडली टीवी कमर्शियल्स के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट ए क्रिटिकल थिंकर। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जब ब्लाइंडली इन चीजों पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि इश्तिहार देखा और पैसे खर्च किए, और उसके बाद पता चला कि जो है ना, जो प्रोजेक्ट ली है, जो सर्विस ली है, वो नहीं है जो क्लेम किया गया, एंड वी ब्लाइंडली फॉलो अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा, if you keep on doing same things every day, you will keep on getting same results every time. तो जब आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे दूसरों को, तो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक पॉइंट हेयर, कि पहले तो सीधी बात है कि यू बिकम ए कार्बन कॉपी, कि जो दूसरे कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप अपना इनपुट दें,
और मैं ये नहीं कहता कि आप फॉलो ना करें, आप यू शुड ओपन योर आईज, यूज योर सेंसेस, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप फॉलो करें, बट यू शुड नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली, यूज योर सेंसेस। अल्लाह ताला ने जो सारे सेंसेस आपको दिए हैं उनको आप यूज करें, और आप ये देखें कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं क्या वो वाकई कोई ठीक काम कर रहा है, या हो सकता है कि वो ठीक काम ना कर रहा हो। सो जब आप ब्लाइंडली हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, आप ब्लाइंडली स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, टीवी कमर्शियल्स को फॉलो कर रहे हैं, और आप बगैर सोचे समझे ब्लाइंडली दूसरों को फॉलो कर रहे हैं कि जो दूसरा काम कर रहा है आप भी वही कर रहे हैं, तो अगर जाके वो गड्ढे में गिरेगा तो आप भी उसके पीछे। जैसे मुझे यहां पे एक याद आ रहा है एक छोटा सा जोक, कि एक साहब जो हैं, इट इज अ जोक, कि वो एक कुएं पे बैठे होते हैं और बार बार कह रहे होते हैं 20 20 20 20। काफी देर से वो 20 20 20 कर रहे होते हैं। तो एक साहब उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हाँ भाई आप ये 20 20 क्यों कर रहे हैं? तो वो साहब कहते हैं, नीचे देखो जरा कुएं में। वो साहब नीचे देखते हैं, उनको धक्का देते हैं और वो साहब अंदर। और फिर वो जो साहब हैं पहले वो बोलना शुरू कर देते हैं 21 21 21 21। So we need to, use our senses. We need to observe. हमें देखना है कि क्या चीज जायज है, कौन सी चीज नाजायज है, कौन सी चीज लीगल है, कौन सी चीज इलीगल है, कौन सा काम एथिकल है, कौन सा काम अनएथिकल है। हमारी एजुकेशन, हमारी लर्निंग, हमारा कल्चर, तमाम चीजें, तमाम पैरामीटर्स हमें इस चीज के लिए हमें फोकस करते हैं कि वी शुड वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, जब हम बात करते हैं लाइक परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और जब हम बात करते हैं किसी मुल्क की तरक्की की, सो critical thinkers are must. So people don't always use critical thinking skills. So it is not uncommon for people to say, I thought it was no big deal. I just was not thinking about it. How was I supposed to know? I cannot think of everything. My bad luck. ये लास्ट वाला पॉइंट तो आई थिंक हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कहा होता है कि माई बैड लक। हम जब कहते हैं माई बैड लक तो हम ये भूल जाते हैं कि लोग अपनी कोशिश से, अपने स्मार्ट वर्क से, अपने हार्ड वर्क से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने हालात को बदल सकते हैं। आपकी जो किस्मत में है आपको मिलेगा, लेकिन कोशिश शर्त है। आप अगर कोशिश नहीं करेंगे तो क्या आप एमपीए की डिग्री ले सकते हैं? अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप इस कोर्स में क्या पास हो सकते हैं? तो यकीनन हमें सोचना चाहिए कि किस्मत जो है हम खुद बनाते हैं। So, people who have poor critical thinking skills are their own worst enemies. तो जो लोग जिनकी पुअर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। सो ओवरऑल जब आप देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ आज के लेक्चर में हमने बात की कि
in development planning and administration, how critical thinking can help us. जब हम बात करते हैं planners की, administrators की, तो this is really very important that they must have good critical thinking skills. Now, people having good critical thinking skills, they use their senses and they use that 4I principle. Now, what is that 4I principle? 4I principle means that you are using all of your senses. So you're not only looking with your eyes, you're also looking with your ears and heart as well. So जो लोग चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं, अपने इर्द गिर्द के हालात पे नजर रखते हैं, हर चीज को क्रिटिकली एवेलुएट करते हैं, गौर गौज करते हैं, एनालाइज करते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं, एक ही सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, दे आर रियली गुड क्रिटिकल थिंकर्स. So people who keep on blaming others, people who do not take the responsibility, people who do not accept their mistakes, they are not critical thinkers. So जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डेफिनेटली हमें ऐसे प्लान्स बनाने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हमने एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि we should, make realistic plans based on the feedback, and that feedback should be the real feedback. ये ना हो कि आपकी अपनी एक कोई परसेप्शन है और उसी परसेप्शन को सामने रखते हुए आप हर साल एक ही तरह के प्लान्स बना रहे हैं. So you need to improve your perception, and how one can do that? When you involve others in making decisions. And talking about administration, when we talk about implementation of various change strategies, so we need to be a good critical thinker, because we should know that कि अगर किसी एम्प्लॉय की, किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अगर डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है वो, तो व्हाट आर द रूट कॉजेस और व्हाट corrective measures can be taken. So in nutshell we can say that in order to improve the planning and administration of any organization, critical thinking has its strongest role to play. And people who do not use their critical thinking skills, they are their own worst enemies. I believe कि आज के लेक्चर से आपने बहुत लर्न किया होगा. Thank you very much for your kind attention. Inshallah, see you all in the next lecture. Khuda Hafiz.